हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब्स अवेकनिंग एंड इनक्रेडिबल इंडिया। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरी पिछली वीडियोस को बहुत सराहा। आपके उस इनकरेजमेंट से मुझे और मोटिवेशन मिला कि मैं और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। आज हम लास्ट टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा था 10th क्लास का लाइफ प्रोसेस, उसी का न्यूट्रिशन जो प्रोसेस था उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस in which an organism take the food material and it utilizes it into the body. There were two kinds of the nutrition: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Auto is the word which suggests that the nutrition which takes place self. जो न्यूट्रिशन अपने आप होता है उसे हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो आपको मैंने दिया वो ग्रीन प्लांट्स थे। और जैसे ही हम ग्रीन प्लांट्स बोलते हैं, आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बात बताई गई थी कि ग्रीन प्लांट्स का मतलब, जैसे ही ग्रीन प्लांट्स बोला वैसे ही वर्ड आया फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। लास्ट टाइम आपने ये चीज़ शायद नहीं पढ़ी थी, ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। इसी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं। नंबर 1, देयर इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप ये होता है, क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही क्लोरोफिल पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। एज वी स्टडीड दैट विदाउट सनलाइट, हियर द लाइट मीन्स सनलाइट, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस। द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस मीन्स 4 रॉ मटेरियल्स: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, और सेकेंड स्टेप में दिस लाइट एनर्जी which is absorbed by the chlorophyll is converted into the chemical energy, and along with that there is the splitting of the water molecule into the hydrogen and oxygen. The second raw material of the photosynthesis is water, H2O. This H2O molecule is converted into the hydrogen and oxygen. The third step is the reduction of carbon dioxide to the carbohydrate. Here the carbohydrate is nothing but the glucose, and we also studied that this glucose is converted into the starch. ये जो मैंने 3 इवेंट्स यहाँ पर लिखे हैं स्टूडेंट्स, इन 3 इवेंट्स को हम ऐसे भी कह सकते हैं: 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. This is converted into the product which is formed at the last, that is C6H12O6 plus 6O2. 6 molecules of carbon dioxide, when they combine with 6 molecules of water molecule, then in the presence of sunlight and chlorophyll, this is converted into C6H12O6, which is known as the food of the plant or the glucose. This glucose along with the oxygen molecules. This glucose, when it is formed in the plant, when it is formed in excess in the plant, it is converted into another substance that is called as starch, and this starch is nothing but the deposited energy in the plant's body. So we have discussed about the autotrophic mode of nutrition. Now we are going to discuss about the heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition is of 3 kinds. One is called as the holozoic, second one is called as the saprophytic or saprotrophic. This is saprotrophic or saprophytic. Third one is called as the parasitic mode of nutrition. So we start with the first kind of
trophic mode of nutrition, which is holozoic. Holozoic is the word which is made from the word whole. The whole or the complex food material is taken into the body, in the body of an organism, and this is broken down. It means that if we talk about the holozoic mode of nutrition, the best example is the human being. You know what we do? We take the complex food material into the body, and this complex food material, when goes into the body, by the enzymatic action, by other chemical actions, this food is converted into the simpler food material. Therefore, holozoic mode of nutrition is that in which the complex food material is directly taken into the body. And after the holozoic mode of nutrition, there is the saprophytic or saprotrophic mode of nutrition. Saprotrophic is made from the word sapro. Sapro is called as rotten, सड़ा हुआ. ऐसा फूड मटेरियल जो सड़ा गला हो. कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सड़े गले फूड मटेरियल से अपनी ग़िज़ा को, अपने खाने को हासिल करता है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं. जितने भी आपने देखा होगा, अगर हम सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक ऐसा ऑर्गेनिज्म विच इज़ एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, वुल्चर, गिद्ध. गिद्ध किन चीज़ों को खाता है? उन चीज़ों को खाता है जो सड़ी गली हैं, जो डेड हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म सड़ी गली चीज़ों से अपनी ग़िज़ा को, अपने खाने को, अपने भोजन को हासिल करता है. थर्ड वन is the parasitic mode of nutrition, a mode of nutrition in which an organism lives in the body or on the body of the other organism and gets its food is called as the parasitic mode of nutrition. बच्चों, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर से अपने भोजन को, अपने खाने को हासिल करता है. मैं आपको दोनों एग्जांपल्स बताता हूँ कि किस तरह से कोई ऑर्गेनिज्म बॉडी के ऊपर से और किस तरह से बॉडी के अंदर से अपने खाने को हासिल करता है. सब लोग जानते हैं लाइसेस, जूं जो है वो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. सर में या बॉडी पार्ट्स में कहीं पे भी अगर जूं होती है तो वो क्या काम करती है? आपकी बॉडी से ब्लड को सक करती है और उसे वो खाना मिलता है. उसके लिए खाना क्या है? हमारा ब्लड है. और हम जो है उसके लिए क्या हो जाते हैं? होस्ट बन जाते हैं. जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के ऊपर से या अंदर से खाने को लेता है उसे हम पैरासाइट बोलते हैं, और हमारी बॉडी उसके लिए क्या बन जाती है स्टूडेंट्स? होस्ट कहलाती है. इसका बेस्ट एग्जांपल जो है आपका एक और हो सकता है मस्किटोज़. मस्किटोज़ में भी सब लोग जानते हैं देयर इज़ वन ऑफ द मस्किटो विच इज़ कॉल्ड एज द एनाफिलीज मस्किटो, फीमेल मस्किटो, विच इज़ नोन एज द मलेरियल पैरासाइट. मलेरियल पैरासाइट का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा पैरासाइट जो हमें मलेरिया कॉज करता है. यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ. मस्किटो इज़ नॉट द एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. दिस इज़ ओनली द कैरियर. दिस इज़ ओनली द कैरियर. बेसिकली क्या होता है कि मस्किटो जब अपने प्रोबोसिस को, प्रोबोसिस जो है वो उसके डंक को कहा जाता है, जब मस्किटो अपने प्रोबोसिस को, अपने डंक को हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट करता है तो वो हमारी बॉडी के अंदर सलाइवा सिक्रीट करता है. तो बच्चों क्या चीज़ सिक्रीट कर रहा है वो हमारी बॉडी में? सलाइवा सिक्रीट कर रहा है. और उस सलाइवा के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर एक और ऑर्गेनिज्म है जो मस्किटो की बॉडी के अंदर पाया जाता है, वो हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाता है, और उस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्लाज्मोडियम. क्या नाम है बच्चों उस ऑर्गेनिज्म का? प्लाज्मोडियम. तो जब भी मस्किटो, एनाफिलीज मस्किटो हमें काटता है तो ये एनाफिलीज मस्किटो क्या काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम को इंसर्ट करता है, और ये प्लाज्मोडियम वही है जो हमें मलेरिया कॉज कर रहा है. वैसे तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वैरायटी हैं, लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ देयर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज़ देयर, प्लाज्मोडियम falciparum is there, plasmodium calci is there, plasmodium
ओवेल इज देयर आर variety of the plasmodia. Singular is called as plasmodium and plural is called as plasmodia. तो जब भी एनाफ्लीज मस्किटो ने हमें काटा तो उसने काटने के बाद हमारी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर दिया। अब इन 4 वेराइटीज़ में जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है वो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और वाइवेक्स मानी जाती हैं, जिसकी वजह से हमें मलेरिया होता है। आप अगर देखेंगे स्टूडेंट्स तो मैंने ये जो नाम लिखा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मैंने उसका साइंटिफिक नेम लिखा है। और आप लोगों ने 9th क्लास में शायद इसके बारे में सुना भी होगा कि किसी भी साइंटिफिक नेम को कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड ऑल द लेटर्स आर स्मॉल ऑफ दिस वर्ड विच इज कॉल्ड एज द जीनस एंड अनदर वर्ड इज कॉल्ड एज द स्पीशीज। किसी भी साइंटिफिक नेम के अंदर 2 नेम्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द जीनस एंड अनदर वन इज कॉल्ड एज द स्पीशीज। जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और बाकी के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं, लेकिन स्पीशीज के सारे लेटर स्मॉल्स होते हैं। और साथ ही साथ इन दोनों वर्ड्स को हम अंडरलाइन करते हैं एंड बोथ द वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय ए गैप। दोनों के बीच में गैप लिखा जाता है। तो मैं बार बार ये स्पेलिंग प्लाज्मोडियम नहीं लिख रहा, इस वजह से मैंने कैपिटल पी लिखा है। दीज आर द ऑल 4 वैरायटी ऑफ द प्लाज्मोडिया विच आर फाउंड एंड दीज कॉज वन ऑफ द डिजीज विच इज कॉल्ड एज मलेरिया। सो स्टूडेंट्स, आज के बाद से आप लोग याद रखिएगा कि मस्किटो जो है वो सिर्फ एक कैरियर है, किस चीज़ का? प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का। तो आज हमने बच्चों क्या चीज़ पढ़ी? न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी उसकी 3 वैराइटीज़, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक, एंड थर्ड वन इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट क्लास जब भी हम करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? जितने भी न्यूट्रिशनल प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स सीखेंगे और साथ ही साथ न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो भी पढ़ेंगे और न्यूट्रिशनल प्रोसेस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बच्चों, दोस्तों और जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।